हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दयाल चंद पाठक। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल फिजिक्स मेड इजी बाय DCP. So, in class 12th physics, we were discussing about the first chapter, electric charge and field. In last lecture, we have discussed about charge distribution and type of charge distribution, linear charge, area charge and volume charge distribution. Then we have discussed about electric flux, area vector and Gauss law. Now, what is today? Today we will continue with the same topic, Gauss law. Now, what was Gauss law? Gauss law. What was Gauss law? Gauss law was a method to find out the electric flux. Is it a method by which we can find out the electric flux of a closed loop? According to Gauss law, if a charge is enclosed, means when a charge is inside a closed loop, then the total flux of that closed loop, the total electric flux of a closed loop is equal to 1 upon epsilon naught time Q. Q is, what is Q? Q, charge inside the loop. Means we will consider only those charges which are inside the loop. So what is Gauss law? According to Gauss law, for a closed loop, the total electric flux is 1 upon epsilon naught time of charge inside it. What is epsilon naught? Permittivity of free space. Earlier we have discussed about permittivity of free space. Its value is 8.85 into 10 to the minus 12 Newton meter square per Coulomb square. Newton Coulomb square upon Newton meter square. Clear? This is its value, 8.85. It will be given in your board question paper. Now this is Gauss law. Now we will discuss further about this Gauss law only. Now, in how many forms we can convert this Gauss law? This is Gauss law. This is the definition. This law is applicable only for closed surfaces. This law is applicable only for closed surfaces. If the surface is not closed, then by hypothetically you can make, yes. So these closed loop, these loops by which the charge is enclosed, that is called Gaussian surface. A hypothetical surface closed loop is called Gaussian loop. Clear? Now we know इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कल के टॉपिक में पढ़ा था, E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इफ यू पुट, सो यहां पर रख देंगे E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज which integral? Surface integral. That means with area we are going to integrate it with area, surface area. This is called surface integral. Clear? Now this is Gauss law. This is also Gauss law. Now if you will convert it further, this surface integral if you will convert in volume integral, अगर इसे आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसे कैसे लिखते हैं? डेल्टा डॉट E dV इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन. अगर आप सरफेस इंटीग्रल को, जो S है, एरिया जो है, एरिया को अगर किस में कन्वर्ट करते हैं? वॉल्यूम में, तो आप ये क्या लगाएंगे? डेल्टा. इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे डेल्टा, फिर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम. क्योंकि वॉल्यूम कैसे क्वांटिटी है? वॉल्यूम कैसे होती है? स्केलर होती है. क्लियर? सो डेल्टा, डेल्टा क्या चीज है? हेयर डेल बोलते हैं इसे. डेल इंटीग्रेटर होता है डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप. दिस इज डेल्टा. ये डेल्टा है. क्लियर? सो दिस इज Gauss law for volume in the term of volume integral. This is for in term of area integral. एरिया से अगर वॉल्यूम में जाएंगे तो आप डेल डॉट ई लगा, इसे क्या लिख देंगे? डेल डॉट ई. यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा dV किससे डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? दिस इज Gauss law in three terms: general terms, in surface integral form, in volume integral form. Clear? Now come to the Gauss law. Gauss law is applicable only for closed loops. किसके लिए applicable है? Only on for closed loop. Now, if you will see Gauss law, we know Gauss law. What is the formula of Gauss law? Gauss law is coming integration of total flux equal to Q upon epsilon naught. Here, if you will see, flux depend on टू फैक्टर्स. केवल कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर? टू. नंबर फर्स्ट, चार्ज इनसाइड द लूप
किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज इनसाइड द लूप पर डिपेंड कर रहा है। नंबर सेकंड, परमिटिविटी किस पर डिपेंड कर रहा है? परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट. It is so that means by Gauss law, if you will see the flux is depend on two terms, Q and epsilon naught. It is not going to depend on the size. कहीं पर भी साइज नहीं आ रहा है. इसका मतलब जो क्लोज चार्ज के चारों तरफ जो लूप है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उससे कोई फर्क, there is no effect because it is not going to depend on what? It is not going to depend on its shape and size. मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ there is a charge Q inside this, its flux will be phi E equal to Q upon epsilon naught. If same charge inside this, then again its flux will be Q upon epsilon. Surface should be closed, either it is small or large. That means it is not going to depend on radius. It is not going to depend on its radius. So size पे depend नहीं करता. ये बहुत important है. Size you can change. If you will change the size, then there will be no effect on the flux. Flux उसके size पे depend नहीं करता of that closed loop. This is very important question of this. It will depend only on two factors, Q and epsilon naught. It is not going to depend on shape and size. Now, yesterday we have discussed that about a question, if inside a closed loop there is a dipole minus Q and plus Q separated by distance 2m. Suppose this is a dipole is kept inside a closed loop. Then we know about it by Gauss law. By Gauss law, if you will find out its flux, its total flux will be Q upon epsilon naught. Q is integral. If many charges are there for, this is we can have for system of charge, for system of charges. Gauss law को ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए 1 upon epsilon naught समेशन लगा देंगे I 1 से लेकर n तक QI means algebraic sum of all the charges. टोटल चार्ज इनसाइड इट बोला उसने, टोटल चार्ज क्लोज लूप के अंदर कितना है उसका सबका सम कर देंगे. एंड यू नो एडिशन ऑफ चार्जेस इज एल्जेब्रिक. एडिशन ऑफ चार्जेस इज एल्जेब्रिक. सो हियर एडिशन करेंगे तो कितने चार्जेस है? 2 ही है. तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो गया? 0. दैट मीन्स द फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज लूप विल कम टू 0. इसका मतलब इसका फ्लक्स लूप क्या हुआ? 0. दैट मीन्स वी कैन से दैट यू सी हियर for dipole और डाइपोल E डिपेंड करता है 1 upon r क्यूब पर. अगर आपने नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो देखिए. एट एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट E डिपेंड ऑन r क्यूब. E किस पे डिपेंड करता है? r क्यूब पे. इन दैट केस गॉस लॉ मींस ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट नहीं कर सकता. इसका फ्लक्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. इसका फ्लक्स 0 आ गया तो इसका फील्ड भी कैसा आ जाएगा? 0. सो बाय गॉस लॉ इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड 1 upon r क्यूब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? 1 upon r क्यूब पे, तो गॉस लॉ से ऐसे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं निकाल सकते. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सिस्टम, जैसे इस सिस्टम का, इज इनवर्सली डिपेंड ऑन r क्यूब, अगर वो r क्यूब पर डिपेंड कर रहा है या किसी और टर्म पर, r के बाद 4 पर, r स्क्वायर के अलावा किसी और टर्म पर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर उस कंडीशन पे आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ नहीं चेक कर सकते. क्लियर? बट अगर वो E इनवर्सली डिपेंड करेगा r स्क्वायर, हियर गॉस लॉ इज एप्लीकेबल. बाय इन दैट कंडीशन यू कैन फाइंड आउट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ. तो गॉस लॉ इस कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ये कंडीशन इसी के लिए है. क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है व्हाई इट इज नॉट डिपेंड, बिकॉज ये सरफेस पे डिपेंडेंसी शो करने लगेगा. क्लियर? नाउ चलिए क्वेश्चन करते हैं हम गॉस लॉ रिलेटेड. क्वेश्चन आता है इफ ए चार्ज Q at the center of a cube of side L find flux of one face of cube. Find flux of one face of the cube. क्या कह रहा है? If a charge Q is at the center of cube, एक क्यूब दिया है, so this is a cube. I is asking if a charge is kept at the center of the cube. अगर एक चार्ज कहाँ रखा है? इसके सेंटर पर रख दिया जाए. देखिए यहाँ
इफ चार्ज इज केप्ट एट इट्स सेंटर, अगर एक चार्ज कहाँ रख दिया है, इसके सेंटर पर रख दिया जाए, तो कह रहा व्हाट विल बी द फ्लक्स ऑफ दिस वन फेस, किसी एक फेस का, मान लीजिए हम इस फेस का निकालते हैं, हाउ मेनी फेसेस ऑफ ए लूप, ए क्यूब हैव 6 faces, how many faces, 6, देखिए 1 2 3 4 5, that side both sides 6, total flux we can find out by Gauss law, हम किसके लॉ से टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं, बाय गॉस लॉ, कितना आएगा टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ q upon एप्सिलॉन, क्लियर, फॉर दिस इज फॉर हाउ मेनी फेसेस, दिस इज फॉर ऑल द फेसेस, ये सब फेसेस के लिए, दिस इज फॉर ऑल द फेसेस, सबके सब फेसेस के लिए ये है ना, तो फॉर वन फेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर वन फेस विल बी 1/6 एप्सिलॉन नॉट, 6 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज द फ्लक्स फॉर वन फेस, क्लियर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर वन फेस। टू फेस के स्केल करेंगे तो 1/6 q upon एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 कर लेंगे, 2 के आ जाएगा, 3 के लिए करेंगे इंटू 3 कर लेंगे, 4 के लिए बोलेगा इंटू 4 कर लेंगे, 5 के लिए बोलेगा इंटू 5 कर लेंगे, 5 फेसेस का कितना होगा, और 5 फेसेस कितना होगा, 5 फेसेस का, 5 फेसेस का होगा आपका 5/6 q upon एप्सिलॉन नॉट, एक फेस का 1/6 था तो 5 का 5/6 हो जाएगा, 3 का 3/6 हो जाएगा, क्लियर, सो दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल करना होता है। इन फ्यू टाइम यू विल नॉट गेट द क्लोज लूप, कुछ समय पर तो आपको क्लोज लूप मिलेगा, लेकिन किसी कंडीशंस पर आपको क्लोज लूप नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया है ये, ठीक है, दिस इज ए सेमी स्फीयर, देयर इज ए चार्ज प्लस क्यू, यहां पर एक चार्ज रखा प्लस क्यू, हमने बताना है फाइंड फ्लक्स ऑफ इट, फ्लक्स पास थ्रू दिस सेमी स्फीयर, इस स्फीयर से सेमी स्फीयर से होकर जाने वाले फ्लक्स को हमने फाइंड आउट करना, फाइंड फ्लक्स। नाउ दिस इज नॉट क्लोज लूप, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल कंप्लीट दिस डायग्राम, फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस, दिस इज द कंप्लीट वन, है ना, हम इसे कंप्लीट कर लेंगे पहले, दिस इज द कंप्लीट वन, दिस इज सपोज सही से बना लेते हैं, दिस इज द क्लोज, क्लियर, नाउ इट इज क्लोज लूप बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स टोटल फ्लक्स गॉस लॉ का q upon एप्सिलॉन, क्लियर, एप्सिलॉन, बट इन द क्वेश्चन दिस इज फॉर होल लूप, हाउ मेनी लूप्स आर देयर, 1 अप 1 डाउन 2, सो फॉर 1 बिकॉज इट इज गिवन ओनली फॉर 1 ना, हमसे क्वेश्चन में तो एक के लिए पूछा था, 1/2 q upon एप्सिलॉन, दिस इज द फ्लक्स फॉर 1, क्लियर, दिस इज द फ्लक्स फॉर 1, सो फ्यू समटाइम्स यू हैव टू कंप्लीट द डायग्राम, हो सकता है आपको कभी क्लोज लूप खुद बनाना पड़ेगा, ड्यू टू दैट रीजन आई हैव टोल्ड यू दैट इज हाइपोथेटिकल थिंग्स, हाइपोथेटिकल लूप्स है, तो कंप्लीट किया मैंने, गॉस लॉ लगा दिया, आधे का कितना होगा 1/2 q upon एप्सिलॉन, 1/2 q upon एप्सिलॉन, this will be the answer, correct or not, yes, now if नंबर दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया, मेनी टाइम्स इट विल गिव डिफरेंट क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन इज दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज लूप, आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स ऑफ लूप, इसका फ्लक्स बताना। Now it is not closed loop, first of all it is not closed loop, number second अगर एक closed loop नहीं है, closed loop बना सकते हैं इसको, पर closed loop बनाने से फायदा क्या होगा, इनकमिंग इक्वल टू क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया, अगर इसका एरिया देखे तो एरिया कहाँ को दिखाई देगा, इसका एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन दैट सरफेस, दिस इज इट्स एरिया वेक्टर, ये इसका क्या है एरिया वेक्टर, कितने का एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री का, हम जानते हैं, अगर यहाँ पर सिंपल कंडीशन भी मैं लगाऊं तो E डॉट ds क्या हुआ एरिया, ये cos थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको E डॉट ए यहाँ पर एरिया माना तो E डॉट ए, E a cos 90 कितना होगा 0, cos 90 कितना हो गया 0, सो इट विल कम 0, और अगर जनरल वे में करें तो हाउ मेनी लाइंस आर गोइंग थ्रू इट, 1 2 3,
3 lines are going and 3 lines are coming in that loop and 3 are going out from the loop. Total of inside the charge is 0. So if inside the charge is 0, that means phi E equal to Q upon epsilon naught. 0 upon epsilon naught equal to क्या हो जाएगा 0. Number of line coming equal to number of line going. That means जितनी आ रही है उतनी जा रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 0. बाय एनी मेथड यू कैन फाइंड आउट. सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया बाय गॉस लॉ, इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड लूप. फाइंड फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड लूप. देखिए, this is the condition is given, this condition is given. $10,000 lines are entering and 15,000 lines are coming out. Question है, 10,000 lines are entering through this loop and 15,000 are coming out. How many extra lines are coming? Number of lines entering कितना है? नंबर ऑफ लाइन एंटरिंग, कितना एंटर कर रही है? एंटरिंग इक्वल टू हाउ मच? 10,000. नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट, कितना आ रही बाहर? 15,000. क्लियर? इसका मतलब कितनी बढ़ गई? नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम लूप. लूप से कितनी आ रही है? 15,000 माइनस 10,000 कितनी आ रही? 5,000. कितनी लाइन्स आ रही? 5,000. सो फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका? इस लूप का फ्लक्स होगा कितना? 5,000. ये भी एक कंडीशन होती है. नंबर ऑफ लाइंस, मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज्ड लूप, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. तो यही इसका फ्लक्स है. यूनिट क्या होती है? न्यूटन कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर. सो कंडीशंस विल बी डिफरेंट इन कूलम्ब लॉ, गॉस लॉ. गॉस लॉ में जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती है. क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जाता है. क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको कंडीशन सारी समझनी होंगी. अगर क्लोज लूप नहीं है तो उसे क्लोज लूप आपको बनाना पड़ेगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए, सपोज क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट इफ ए चार्ज इज केप्ट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज ए क्यूब, ये क्यूब है ऑफ साइड एल, इट्स साइड इज एल, ये क्यूब है, इसकी साइड एल है. There is a charge kept at one surface, one face. यहाँ रखा है किसी एक फेस पर, नॉट kept at center, किसी एक फेस पर रखा है. अगर फेस पर रखा है तो इट इज नॉट क्लोज लूप. ये क्या नहीं है? क्लोज लूप नहीं है. समझ रहे? अगर क्लोज लूप नहीं है तो इसका मतलब कितना हुआ? इसको क्लोज लूप बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे? यहाँ पर एक, आप एक और क्या बना देंगे? क्यूब बनाएंगे. ये आ गया, ये आ गया क्लोज लूप, है ना. अब ये 2 क्यूब हो गए. कितने क्यूब बना दिए हमने? 2. अब ये अंदर आ गया इसके. पहले कहां था? बाहर था. इस तरफ रखा होता है, इस तरफ एक लूप बनाते थे. नाउ टोटल फ्लक्स, बिकॉज गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज लूप, बाय गॉस लॉ टोटल फ्लक्स विल कम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. टोटल फ्लक्स विल कम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज नाउ द चार्ज इज केप्ट ऑन वन फेस, एक फेस पर रखा है. जिस फेस से वो रिलेटिव, उससे फेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी नहीं भाई. जिस फेस पे वो रखा है उस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज मूव आउट, उससे बाहर क्यों निकलती हैं? सो फॉर वन क्यूब, एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. हाफ कर देंगे. फॉर वन क्यूब हाफ, 2 क्यूब से 1 and 2, 2 बनाए थे मैंने क्लोज. एक तो एक जो पहले दिया था उसके लिए इतना हो गया. फॉर वन फेस, अब एक फेस के लिए अगर देखें तो कितना होगा? फॉर वन फेस हो जाएगा आपका Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट. अब यहां आप केवल कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इसे बाय मल्टीप्लाई बाय 5. व्हाई सर? देयर आर 6 फेसेस. नो, नाउ देयर आर ओनली 5 फेसेस, बिकॉज इन वन फेस देयर इज ए चार्ज. जिस फेस पर चार्ज, जहां चार्ज, जिस फेस से चार्ज रिलेटिव होता है वहां पर कोई भी फ्लक्स नहीं होता है. इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द फ्लक्स ऑन इट्स ओन. अपने अंदर वो फ्लक्स पैदा नहीं कर सकता. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव आउट फ्रॉम देयर. सो कितने फेसेस हुए? अगर फेस पर रखा है तो अब बचे कितने फेसेस? केवल 5 बचे.
पूरे का ये है तो एक का हुआ 10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सो ध्यान रखिएगा जहां पर वो रखा होता है उस फेस पर वो इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? इट विल कम आउट फ्रॉम दैट फेस, उस फेस से कहां आएगा? बाहर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर a charge. Suppose this is a charge. Let there is a charge q. Now we have to prove Gauss law. For Gauss law, what we will do? We will make a closed loop. This is called Gaussian surface. क्या बोलते हैं इसको? Gaussian surface. क्या बना लिया हमने? Gaussian surface बना लिया. This surface, this hypothetical loop is called Gauss loop. Now, suppose this is a sphere. For provement of Gauss law, you will take a charge q, then you will make a sphere of radii r around that charge. Clear? Now, electric field due to charge plus q at the surface of sphere, at the surface of sphere कितना होगा? इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r इसका, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज r की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ पर r की जगह आ जाएगा कैपिटल R, डिस्टेंस इज कैपिटल R बिकॉज रेडियस वी हैव टेकन कैपिटल R, सो नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू ऑन द सरफेस वी आर। क्लियर? नाउ वी विल टेक ए स्मॉल पीस, हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या लेंगे? एक छोटा सा पीस काटेंगे इसमें। सपोज दिस पीस वी हैव टेकन, ये पीस हमने ले लिया, इस पीस को क्या कर लेंगे? हम कट कर लेंगे। जैसे आपने देखा ना तरबूज, पूरा तरबूज को चेक नहीं करते, एक पीस जैसा निकालते हैं ना, कोन। सो वी हैव टेकन ए स्मॉल पीस, इट्स एरिया विल बी आउटवर्ड, so ds. Electric field reduces charge on the surface also outward because this is positive charge. Area vector is always normal on it. Flux of small element of area dx कितना होगा? phi d phi होगा e dot dx होगा, e dot dx तो कितना होगा? d phi हो जाएगा e dx cos theta. Theta is the angle between these two. What is the angle between these two? कितने का एंगल है? 0 डिग्री का, both are in same direction. Cos 0 कितना आ गया? e ds. This is the flux of a small loop. But we have to find out for whole because Gauss law is for whole closed surface. पूरे surface का है, तो for whole sphere, पूरे sphere के लिए कैसे निकालेंगे? बोलिए कैसे निकालेंगे पूरे sphere के लिए? चलिए पूरे स्फीयर का कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे इसको पूरे स्फीयर के लिए, क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, क्लोज लूप के लिए डी फाई, राइट साइड में भी क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट करेंगे ds. ई कितना हो गया? ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन केवल क्या बदल सकता है? एरिया बदल रहा। एरिया कितना हो गया? क्लोज लूप का एरिया कितना हुआ? स्फीयर है 4 पाई r स्क्वायर, एरिया में स्फीयर कितना होता है? 4 पाई r से। ई की वैल्यू हो गया 1/ε0 q अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर, कैंसिल, कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज लूप q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज लूप इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. प्रूफ दिस वाज द गॉस लॉ. यही तो था गॉस लॉ. फाई की जगह मैंने d फाई ले रखा है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर E लगाते हुए आएंगे बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बॉटम में E लगा देंगे इसके बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो E लगा देंगे. दिस इज द प्रूवमेंट ऑफ गॉस लॉ. सिंपल सा एक स्फीयर लेना है, एक छोटे पीस के लिए जैसे हम किसी चीज को चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक स्मॉल पीस को चेक करते हैं. सिमिलरली वी विल टेक ए स्मॉल पीस, वी विल फाइंड आउट द फ्लक्स ऑफ दैट स्मॉल पीस, then for whole we will integrate it, we will get the answer. Integration, total area of the sphere is 4 pi r square. This is the area of a sphere. Clear? Now condition, question is there, if here r is going to depend on 1 upon r square, r किस पर डिपेंड कर रहा है? 1 upon r square, तभी फॉर्मूला ये आ रहा है. अगर r क्या e किस पर डिपेंड कर रहा है? 1 upon r square पर. अगर e 1 upon r square पर डिपेंड कर रहा है then you are getting this प्रूवमेंट. अगर e डिपेंड नहीं करता 1 upon r square पर, it depend on 1 upon r cube, like डाइपोल. डाइपोल पर किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 upon r cube. अगर 1 upon r cube पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर क्यूब आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? r. That means in that condition Gauss law is not applicable. मैंने पहले भी बताया था, इसलिए r क्यूब वाले में Gauss law applicable नहीं है क्योंकि वो किस पर डिपेंडेंसी शो करने लगेगा? On the radius. It will depend on the shape and size, which is not possible. In Gauss law it is not depend on shape and size. So E, for validity of Gauss law, E should be inversely depend on
आर स्क्वायर, इट शुड फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर नहीं करता तो ड्यू टू दैट रीजन द डायपोल मोमेंट ऑफ द फ्लक्स और डायपोल मोमेंट वाज कमिंग हाउ मच, जीरो। जो डायपोल मोमेंट था, जो फ्लक्स था किसका, डायपोल का, कितना आ रहा था, जीरो। क्यों आ रहा था, बिकॉज डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, आर के ऊपर, एंड गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल अंडर दैट कंडीशन। उस कंडीशन में किसका लॉ एप्लीकेबल नहीं है, गॉस का लॉ एप्लीकेबल नहीं। क्लियर, यस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका लॉ प्रूफ करना है, कूलाम का लॉ प्रूफ करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके आपने किसका लॉ प्रूफ करना है, कूलाम का लॉ प्रूफ करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। कैसे करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन आएगा, प्रूफ यूजिंग गॉस लॉ बाय प्रूफ गॉस लॉ कूलाम लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। वो आपसे कहेगा कि कूलाम का लॉ, गॉस का लॉ यूज करके आप कूलाम का लॉ यूज प्रूफ कीजिए। फॉर दैट व्हाट यू विल डू, let a charge plus q, suppose this is a charge plus q, clear, this is a charge plus q, then we are using here Gauss law, so what we will do, we will make a loop that is called Gaussian loop. What is that, Gaussian loop, Gaussian loop, this is a hypothetical loop we have made. Suppose this is a Gaussian sphere of radii R. We have made a sphere of radii R. Now we have to prove Gauss law for this. हमने इसके लिए किसका लॉ, by using Gauss law we have to prove कूलाम लॉ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अब गॉस लॉ का यूज करके कूलाम का लॉ प्रूव करना है। फॉर दैट मैंने क्या किया, लेट ए चार्ज क्यू एंड एक हाइपोथेटिकल लूप बना दिया जिसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। नाउ अब प्रूव करते हैं। देखिए, we know for closed loop Gauss law, for closed loop Gauss law, what is Gauss law, integration total flux q upon epsilon naught, is it? Now flux we can write E dot ds, फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, E dot ds लिख सकते हैं। इसे खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, E ds cos theta dot product is cos theta q upon epsilon. Is it clear? लिख सकते हैं, yes or no? लिखा जा सकता है। Here now for the algebra we will take a small piece again. For checking always we will take a small piece. This is a small piece of area ds. Electric field will outward. Both are outward. Theta will become to 0 because area vector is always normal on it. एरिया वेक्टर बाहर क्यों होता है, ये दिस प्लस प्लस ड्यू टू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो आउटवर्ड, सो ये आ जाएगा E ds cos 0, cos 0 इज 1, क्या आएगा E ds q upon epsilon naught, सो E कॉमन हो गया, ds because what will be vary, only area will be increased, electric field remain same at every point because radii will remain same, so it is constant, हम बाहर आ गया। So area of sphere 4 pi r square q upon epsilon naught, तो E क्या आ गया 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, इधर ले गए तो ये आ गया, क्लियर। नाउ we know E equal to f upon q naught, f equal to E q naught, let there is a charge on its surface plus q, test charge, so f will be कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r square. This is whose law, Coulomb law. So prove, yes or no? So we can prove Coulomb law by Gauss law. हो गया ना, यही तो Coulomb law है। एक टेस्ट चार्ज मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो फोर्स आ गया, दिस इज Coulomb, यही फोर्स 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, यही था Coulomb law। So proof by using Gauss law. Gauss law का यूज करके हमने किसका लॉ प्रूव कर दिया, Coulomb law. So by using Gauss law we can prove Coulomb's, किसका लॉ प्रूव कर सकते हैं, Coulomb। Is it clear? चलिए now एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, if Coulomb law depend on 1 upon r cube at the place of 1 upon r square, will Gauss law
वैलिड, विल गॉस लॉ वैलिड, क्या गॉस लॉ वैलिड होगा? और गॉस लॉ इज ट्रू, क्या गॉस लॉ ट्रू होगा? अंडर दैट कंडीशन विल गॉस लॉ विल बी वैलिड इफ कूलाम लॉ डिपेंड ऑन 1/r³ एट द प्लेस ऑफ 1/r²। अगर कूलाम का लॉ 1/r² की जगह 1/r² की जगह किस पे डिपेंड करे? 1/r³। क्या गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा? लेट्स सी, देखिए, इफ f डिपेंड ऑन 1/r³, सो E इक्वल टू होता है f/q0, सो E विल ऑल्सो डिपेंड ऑन 1/r³। और अभी मैंने आपको आंसर बताया, इफ E विल डिपेंड ऑन 1/r³, तो हम क्या करेंगे? गॉस लॉ प्रूव करते हैं। सो गॉस लॉ अंडर दैट कंडीशन, इस कंडीशन पर गॉस लॉ क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स Q/ε0 इंटू साथ में क्या आ जाएगा? R। क्या आएगा? अभी पीछे मैंने बताया आपको, इससे जस्ट पहले डेरिवेशन करते वक्त बताया ना, व्हेन वी हैव प्रूव्ड द गॉस लॉ। सो इन दैट कंडीशन गॉस लॉ इज नॉट ट्रू, गॉस लॉ इज नॉट वैलिड, नॉट ट्रू भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? R पर। जबकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। आप शेप कुछ भी कर लीजिए, साइज कुछ भी कर लीजिए, गॉस लॉ क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। इसका एक क्वेश्चन भी आता है, मान लीजिए क्वेश्चन आया, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए एक स्फीयर है आपके पास, अब इनसाइड दैट स्फीयर देयर इज चार्ज, इट्स फ्लक्स विल बी phi equal to Q/ε0. If its radius is r, if its radius is doubled, radius कितनी कर दी? 2r, charge remains same, then under this condition also flux will remain same flux, no change, because flux is depend only on Q and ε0. Clear? Now इफ यू आर नॉट गोइंग टू डबल, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया और आपको बोले डबल नहीं कर रहे हैं, इफ विल इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनसाइड द स्फीयर, अगर स्फीयर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, इन दैट केस ε0 के साथ क्या आ जाएगा? K। हमने पढ़ा है, व्हेनेवर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस देन विद दैट देयर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद ε0 K के साथ क्या आ जाएगा? K। जब तक वॉल्यूम है तब तक ε0, इसलिए बोले मीडियम पर डिपेंड करता है। तो वो the value of electric flux will decrease if you introduce dielectric constant, then value will decrease because with ε0 K will be clear। now चलिए हम मानते हैं, मान लीजिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, +2 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम, +6 कूलम, +8 कूलम, many charges are there inside this loop. Our task to find out its electric flux. We know that flux phi E Q/ε0, and I told you for system के लिए क्या होता है? for system it will be 1/ε0 summation I 1 to n Qi। algebraic सम करना पड़ेगा, चार्जेस एडिशन विल बी ऑलवेज एल्जेब्रिक। कितना हो जाएगा? +2 -3 +4 +6 +8 विद साइन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक सम। कितना आ गया? ये आ गया आपका 8 10 20 17 ε0 वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। अदरवाइज ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, -12 सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट। क्लियर? ये है गॉस लॉ एंड इट्स प्रूवमेंट। तो यहाँ पर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, गॉस लॉ के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, गॉस लॉ से रिलेटिव क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। न्यूमेरिकल का एक अलग सेशन चलेगा, और गॉस लॉ अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस आर नॉट इजी ऑफ गॉस लॉ। अभी आप केवल गॉस लॉ को समझिए, केवल हाउ
यू कैन फाइंड आउट द गॉस लॉ। क्लियर? चलिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया, इफ एक क्वेश्चन करते हैं, इफ E इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए सरफेस ऑफ एरिया 5i कैप। क्या करना है हमने, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, हमने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए सरफेस ऑफ एरिया 5i कैप। चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाउ हियर दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप दिया, एरिया भी वेक्टर में दिया, एरिया कितना दिया हमें 5i कैप, i कैप दिया मतलब j कैप 0 हुआ और k कैप भी कितना हुआ होगा 0, इसका मतलब एरिया केवल कौन से एक्सेस में, x एक्सेस में। क्या करेंगे, फ्लक्स निकालना है, गॉस लॉ तो लगा नहीं सकते क्योंकि क्लोज लूप की कोई बात नहीं है, जनरल तरीके से करेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब i से i के साथ कितना हो गया 15i स्क्वायर प्लस j का j से 0, ऐसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट प्लस 0, i स्क्वायर इज हाउ मच 1, तो कितना आ गया 15 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स। क्लियर? एक्स एक्सेस में तो एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में तो वाई एक्सेस में। यही क्वेश्चन कैसा आता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन होगा, कहेगा इफ E इक्वल टू दिस मच फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गिवन सरफेस, ये सरफेस दिया है, आपने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। देखिए चलिए अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने बताना है कितना होगा, इसके बाद सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। क्या होगा सर, कैसे पता लगाएंगे क्या होगा फ्लक्स, इसका फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है और माइनस भी, इसका एरिया वेक्टर का पता है नहीं। देखिए मान लीजिए फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गिवन सरफेस ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर कर लेते हैं, हाउ मच 10। अब कैसे पता चलेगा, देखिए E दिया है हमें कितना, E वेक्टर दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया वेक्टर पता लगाना पड़ेगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल ऑन दैट सरफेस हम कहते हैं। अब सरफेस पर नॉर्मल ऊपर को भी खींचा जा सकता है नीचे को भी, तो हमेशा आप कौन सा लेंगे, पॉजिटिव। एरिया वेक्टर ही होगा, कौन सा एक्सेस में, कौन सा एक्सेस आ रहा है, वाई एक्सेस। इसका मतलब इसका एरिया कितना हुआ 10 दिया एरिया, तो वाई एक्सेस के लिए सिंबल क्या हो गया j कैप। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर कौन सा एक्सेस में होगा, वाई एक्सेस में नहीं होगा, जेड एक्सेस में भी नहीं होगा, कौन सा एक्सेस में होगा, वाई एक्सेस में, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द सरफेस। कल ही समझाया आपको, क्लियर। तो यहाँ पर इसका मतलब i भी 0 हो गया और k भी 0 हो गया। फाई निकाल लेंगे दोबारा, E डॉट a से कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, i के साथ i 0, j के साथ करेंगे 40 प्लस 0 कितना आ गया 40 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये फेस ऐसी जगह ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो कौन सा एक्सेस आएगा, एक्स एक्सेस आएगा। जेड एक्सेस में आ सकता है किसी भी एक्सेस में, तो उसी से हम उसे बाकी रेस्ट जो रिमेनिंग एक्सेस है वो क्या आएंगे, 0 कंसीडर। क्लियर? सो इस तरह के क्वेश्चंस गॉस लॉ से आते हैं। फर्दर फॉर होल डिस्कशन ऑफ गॉस लॉ आई विल मेक ए लेक्चर फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ गॉस लॉ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन से जाइए, गॉस लॉ प्रूफ कीजिए, गॉस लॉ को समझिए कि अंडर विच कंडीशन गॉस लॉ इज एप्लीकेबल, अंडर विच कंडीशन इट इज नॉट एप्लीकेबल। गो थ्रू इट ऑल। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो एक नए थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय।